Now again, next one is, I learned the answer would come sooner than I expected. I learned the answer may come sooner I expected. I learned the answer would come sooner than I expected. I learned the answer. Where is that? I learned the answer would come sooner than I expected. So it is would come sooner than I expected. I learned the answer would come sooner than I expected. So answer will be hardly he had wait a minute. I was asked come sooner than expected. So it is correct one actually. I learned the answer would come sooner than I expected. It is to rewrite that sentence. Okay. So the answer will be, I learned the answer would come sooner than I had expected. Okay. So I learned the answer would come sooner than I had expected. That is the answer. And next is, hardly he had stepped out then it began to rain. So hardly had he stepped, hardly के बाद had आएगा. Okay, hardly had he stepped out then it began to rain. Hardly had he stepped out when it began to rain. Next one is, either of five dancer will dance tonight. Either of five dancer will dance tonight. Either of five dancer will dance tonight. So इसका जो आंसर होगा वो होगा, any one of the five dancer will dance tonight. Okay, any one of the five dancers will dance tonight. It is not either of the five dancer. It will be the any one of the five dancers will dance tonight. ठीक है. Next, my client was neither aware nor party to the plot. So answer will be, my client was neither aware of nor party to the plot. My client was neither aware of, aware के बाद of लगेगा. ठीक है. nor party to the plot. Okay. Now come to the supply वाला जो क्वेश्चन है. ठीक है. तो नाउ गोइंग टू द सप्लाई वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, इसमें है कि आपको मिसिंग वर्ड को सप्लाई करना है. शी स्टार्टेड द वर्क a few days. शी स्टार्टेड, अब इसमें आएगा शी स्टार्टेड द वर्क since a few days. Okay, so there will be, she started the work since a few days. Alright, she started the work since a few days आ जाएगा इसका आंसर. और नेक्स्ट है, there is no exception this rule. There is no exception this rule. So there is no exception to this rule. अगर हम ऐसे भी लगा देते there is no exception of this rule, तो that will be wrong. It is to this rule. ठीक है. Next है, we are accountable to God. We are accountable to God. We are accountable to God over actions
वी आर अकाउंटेबल टू गॉड फॉर आवर एक्शंस, और टू भी लग सकता है. वी आर अकाउंटेबल टू गॉड फॉर आवर एक्शंस. वी आर अकाउंटेबल टू गॉड फॉर आवर एक्शंस. ठीक है. नेक्स्ट है the police is entrusted of the enforcement of law and order. So the police is entrusted in the enforcement of the law and order. The police is entrusted for the enforcement of law and order, to the enforcement of law and order, with the enforcement of law and order, and at the enforcement of law and order. So ऑफ आएगा यहाँ पे. द पुलिस इज इंटरेस्टेड फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर. ओके, फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, इट विल बी द फोर. ओके, विद भी हो सकता है वैसे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गर्ल वॉज हिट विद द स्टोन हर ब्रदर. द गर्ल was hit with a stone her brother. So with this इसका आंसर होगा द गर्ल वॉज हिट विथ ए स्टोन. ओके. अब है हमारे पास यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. after she take her lunch, she went to the theater. After she had taken her lunch, she went to the theater. The doctor examined the parents every evening को एग्जामिन कर रहा है. द डॉक्टर इज एग्जामिनिंग द पेशेंट एवरी इवनिंग. ठीक है, तो ये हो जाएगा द डॉक्टर एग्जामिनिंग एवरी इवनिंग द पेशेंट. यहाँ पर ये द डॉक्टर विल एग्जामिन द पेशेंट इन द इवनिंग तो नहीं आएगा. सो वाइल द डॉक्टर एग्जामिन द पेशेंट देयर वॉज एन अपर वॉज एग्जामिनिंग. सो ये क्या आ रहा है कि द डॉक्टर वॉज एग्जामिनिंग द पेशेंट एवरी इवनिंग. हर इवनिंग को डॉक्टर उसको क्या कर रहा था, एग्जामिन कर रहा था. तो वॉज एग्जामिन मतलब करता आ रहा है, वॉज एग्जामिनिंग. ठीक है. दे बिल्ड दैट ब्रिज सिंस 2000. सो दे बिल्ड नहीं आएगा, बॉट दैट ब्रिज. सिंस बिल्ड का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, सो बिल्ड का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा बिल्ट. ओके, सो दे बिल्ट दैट ब्रिज सिंस 2003 हो जाएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज ही प्ले कार्ड्स व्हेन आई सॉ हिम. ही प्ले कार्ड्स, ही हैड प्ले कार्ड्स हो जाएगा. ही प्ले कार्ड्स when I saw him. तो यहाँ हो जाएगा he was playing cards when I saw him. ठीक है, तो कंटिन्यूस में जा रहा है ये कि वो कार्ड्स प्ले कर रहा था. ठीक है, हमें इसको हिंदी कन्वर्ट करके देखना पड़ेगा, फिर इजीली अपन इसका बता सकते हैं. नेक्स्ट इज इफ शी वर्क हार्ड. If she work hard, she get a first
in class. If she work hard because she wants to come first in class नहीं होगा. If you work hard you can get a first in class. If you work hard you will get a first class. Okay. If she works hard she will get a first class. Okay, she will get हो जाएगा. तो या she work hard because she wants to come first in class भी हो सकता है. So she get first in class भी हो सकता है. ठीक है, तो यहाँ हो गया कंप्लीट ये पूरा. अब राइट द एंटोनिम बताने हैं हमें. तो सबसे पहले है एक्सटेसी बोलते हैं इसको, वैसे प्रोनाउंसिएशन एक्सटेसी है. सो एंटोनिम बताना है हमें, तो हम लिखेंगे एंटोनिम. एक्सटेसी का एंटोनिम होता है डिप्रेशन, दैट इज सिमिलर, misery, sadness, unhappiness and despair, that is the similar. और अगर हम इसका एंटोनिम बताना चाहें तो होगा हैप्पीनेस. एंड अगर इसका सिमिलर वर्ड देखें तो होगा एगोनी, एलिमेंट एंड एमिनेबल, ब्लेसफुल, कूल होना, डिलिक्टेशन होना, डिलाइट होना, डिलीरियम होना, एब्यूलियंस होना, enchantment होना, enthusiasm, excitement. They all are the antonym of the ecstasy. Advocate. एडवोकेट का एंटोनिम जो होता है, ठीक है, सो इट इज़ टू एडवाइस, टू ब्लेस, टू बोल्स्टर, टू बूस्ट. ये तो इसका सिमिलर हो गया. अगर इसका हमें अपोजिट बताना है तो ये होगा वीक, आर्ग्यू फॉर एंड विंडिकेट, बी इन कॉर्नर, ब्रेस अप. सो देखो सिनोनिम तो बहुत सारे हैं. सपोर्टर, एडवोकेटर, एक्सपोनेंट, प्रमोटर, चैम्पियन, फ्रेंड, अपोस्टल, बूस्टर. बट जब हम इसके एंटोनिम की तरफ चलते हैं, सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द एडवोकेट. सो एंटोनिम हो जाएगा अपोजिट वर्ड. तो अपोजिंग में आएगा इंटरफेयर करना, फ्रस्ट्रेट करना, फेल होना, डिसअपॉइंट करना, डिजर्टिंग करना, फॉइलिंग करना, सबोटेगिंग करना, थ्वार्टिंग करना, दैट इज एंड फ्रस्ट्रेट करना. ओके, डोंट फ्रस्ट्रेट मी. नाउ एनेमिक एंटोनिम चाहिए ना एनेमिक का. तो एनेमिक का एंटोनिम जो होता है, एनेमिक का जो सिनोनिम है वो तो है ब्लडलेस, ठीक है, एंड सिकली, वाइट, शेलो. बट जब इसका एनेमिक का जो हम एंटोनिम देखेंगे तो ये हो जाएगा रेड, रोजी एंड फ्लोरिड, ब्लूमिंग एंड सैंगुइन और रड्डी. ओके, अब हम आते हैं अलाउ. अलाउ का हमें क्या चाहिए, एंटोनिम चाहिए डिसअलाउ, ऑब्वियसली, ठीक है. तो अलाउ का तो होता है अप्रूव, ऑथोराइज, फेवर करना. और अगर हम इसका एंटोनिम देखें अलाउ का तो विथ होल्ड हो जाएगा, ठीक है, एंड डिनाई करना हो जाएगा, कॉन्फिस्केट हो जाएगा, एरोगेट हो जाएगा, ठीक है. अब हम आते हैं नेक्स्ट हाइपरबोल. हाइपरबोल इसका एंटोनिम चाहिए हाइपरबोल का. तो हाइपरबोल का जो एंटोनिम होता है हाइपरबोल है ना. हाइपरबोल का जो हाइपरबोल का मीनिंग होता है कलरिंग या डिस्टोर्शन या एनलार्जमेंट और मैग्निफिकेशन. बट अगर हम इसके एंटोनिम की तरफ जाएं तो वैसे हाइपरबोल का जो एग्जैक्ट सिनोनिज्म होता है वो होता है ओवर स्टेटमेंट और एग्जैगरेशन. लेकिन अगर हम इसके अपोजिट की तरफ जाएंगे तो अंडर एस्टिमेट करना, रिजर्व होना, डेलिकेसी होना, रीस्टेंड करना, ठीक है, लिटोटेस, सिंप्लीफिकेशन, एंटी सेंसेशनलिज्म, दैट इज़ हाइपरबोल का अपोजिट, ठीक है. अब हम आते हैं रीराइट द सेंटेंस चेंजिंग विदाउट चेंजिंग द मीनिंग. He is a learned man, he cannot make that mistake. He is too learned man to make that mistakes, ठीक है.
he is the learned man, he is a learned man and he cannot make mistake. He the learned man, he one is learned from mistake, नहीं यहाँ पे आएगा he is the learned man and he cannot make the mistakes. तो यहाँ पे क्या करना है, use to and to, ठीक है. he is to he is a to learned man and he is to learned man and he too cannot make the mistake. Okay. नेक्स्ट वन है ब्रूटूस वॉज नॉट विदाउट लव फॉर द चेजर एड क्वेश्चन टेक्स. ब्रूटूस वॉज नॉट विदाउट लव फॉर केसर. सो ब्रूटूस वॉज विथ लव केसर एंड जो क्वेश्चन टेक बनेगा यहाँ पे डिडंट ब्रूटूस क्या बनेगा, ये क्या बोल रहे हैं, ब्रूटूस वॉज नॉट विदाउट लव फॉर केसर. वॉज है तो यहाँ पे आएगा डिडंट ब्रूटूस, ऑब्वियसली डिडंट ही आएगा. वॉज तो वॉज के साथ तो डिडंट ही आना चाहिए और वॉजेंट भी आ सकता है, ठीक है. सो डिडंट ब्रूटूस, वॉजेंट ब्रूटूस. सो क्वेश्चन टेक बनेगा इसका, ठीक है. एंड नेक्स्ट वन है एज सून एज ही वेंट देयर. एज सून एज ही वेंट देयर द uproar commenced. The uproar commenced. सो ये है, इसको कन्वर्ट करना था जिसमें चेंज इनटू द इनडायरेक्ट नहीं, अनलेस के एस नो सूनर के अंदर, ठीक है. अपलोड कमेंट्स, तो नो सूनर में कन्वर्ट करना है इसको. तो यहाँ पे आ जाएगा नो सूनर हैड ही गॉन देन द अपलोड कमेंस्ड. नो सूनर हैज़ ही वेंट देयर. नो सूनर हैड ही गॉन देन, नॉट सूनर हैड ही गॉन देन अपलोड कमेंस्ड, ठीक है. एज सून एज ही वेंट देयर है यहाँ पर. तो नो सूनर ही वेंट देयर आएगा, सॉरी, ओके ये हेड नहीं है. नो एज सून एज ही वेंट देयर द अपलोड कमेंस्ड, ठीक है. तो रिमूव द सून एज एंड पुट टू नो सूनर. तो इसको क्या करना है, नो सूनर ही वेंट देयर, एज सून एज को रिमूव करना है और नो सूनर को पुट करना है. नो सूनर ही वेंट देयर द अपलोड कमेंस्ड, ठीक है. नो सूनर ही वेंट देयर द अपलोड कमेंस्ड. नेक्स्ट वन है एदर द फादर और द सन हैज़ नॉट टेकन इट, ठीक है. एदर द फादर और द सन नॉट taken it. Either the father, if we use neither the father nor son attended, यहाँ पर हमें क्या चेंज में कन्वर्ट में करना था, neither, हाँ, neither the father nor the son had neither the father nor the son has not taken it. Okay, so neither the father nor his son taken it. Neither the father nor neither the father nor the son has taken it. Okay, not हट जाएगा. और नेक्स्ट है you tell me truth, I shall not punish you. You tell me truth, I shall not punish you.
तो यहाँ पर हमें कन्वर्ट करना था बिगनिंग ऑफ अनलेस, ठीक है। तो अनलेस यू टेल मी द ट्रुथ, अनलेस यू टेल मी द ट्रुथ आई शैल पनिश यू। ओके, सो अनलेस यू टेल मी द ट्रुथ आई शैल पनिश यू, आई शैल पनिश यू हो जाएगा, नॉट हट जाएगा। अनलेस अपने आप में नेगेटिव ही होता है, अनलेस यू टेल मी ट्रुथ आई शैल पनिश यू, ठीक है। अनलेस अपने आप में नेगेटिव ही होता है। नेक्स्ट इज द प्रिंस सेड इट गिव मी ग्रेट प्लेजर टू बी हेयर दिस इवनिंग। द प्रिंस सेड इट विल बी ग्रेट इवनिंग टू बी हेयर दिस इवनिंग। सो ये है द प्रिंस सेड इट गिव मी ग्रेट प्लेजर टू बी हेयर दिस इवनिंग। सो इसका करेक्टेड होगा प्रिंसेस। ओके, प्रिंसेस, क्योंकि अंदर क्या चल रहा है देखो, सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है तो बाहर भी फर्स्ट फॉर्म ही आनी चाहिए। प्रिंसेस इट गिव मी ग्रेट प्लेजर टू बी हेयर दैट इवनिंग। दिस इवनिंग का हो जाएगा दैट इवनिंग। प्रिंस का सेज रहेगा बिकॉज अंदर की साइड हम देखेंगे तो फर्स्ट फॉर्म यूज में हो रही है। प्रिंसेस इट गेव मी, इट गिव का गेव हो जाएगा। इट गेव मी ग्रेट प्लेजर, इट गेव मी ग्रेट प्लेजर टू बी हेयर दैट इवनिंग। ओके, सो दैट विल बी द आंसर। द प्रिंस सेड इट गिव मी ग्रेट प्लेजर टू हेयर दिस इवनिंग। सो द प्रिंस सेड दैट भी हो सकता है, इसका आंसर एक और है। द प्रिंस सेड दैट the prince said that it gave me great pleasure to be there that evening. Okay, so answer क्या हो जाएगा? The prince said that it gave him great, the prince said that it gave him great pleasure to be there that evening. ठीक है, that is also we solved कि मतलब प्रिंस ने ऐसा कहा, प्रिंस सेड दैट इट गेव हिम, मी का हिम हो जाएगा, इट गेव हिम ग्रेट प्लेजर टू बी देयर दैट इवनिंग। तो ये लास्ट में जब कंक्लूजन निकला कि कौन सा आंसर करेक्ट है, तो द प्रिंस सेड इट गेव हिम ग्रेट प्लेजर टू बी देयर दैट इवनिंग। ओके, सो मी का हो जाएगा हिम। नाउ नेक्स्ट वन इज द मिनिस्टर वॉज स्पोकन टू बाय देम। द मिनिस्टर वॉज स्पोकन, minister was spoken to by them। so ये हो जाएगा the minister, they spoke to the minister। ठीक है, the minister ये क्या है, the minister was spoken to by them, change into the active voice। they spoke to the minister, they spoke to the minister is the active voice, तो the minister was spoken to by them इसका पैसिव वॉइस होगा। they spoke to the minister is the एक्टिव वॉइस हो गया। ओके, नेक्स्ट वन इज नॉट ओनली रामा बट ऑल्सो गोपाल डिड इट। नॉट ओनली Rama but also Gopal did it। तो इसका जो होगा एज वेल एज है ना, हमें एज वेल एज पुट करना है। राम एज वेल एज हिज फ्रेंड इज कमिंग फॉर लंच, मतलब वो तो एक एज एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं हम राम एज वेल एज गोपाल डिड इट। रिमूव नॉट ओनली बट ऑल्सो एंड पुट एज वेल एज। रामा एज वेल एज गोपाल डिड इट। ओके, अब है नेक्स्ट द फार्मर वर्क सो हार्ड दैट he might not starve। the farmer
worked hard that he might not starve. ओके, तो सो दैट लगाना है यहाँ पे, लेस्ट पुट करना है। द फार्मर वर्कड हार्ड लेस्ट ही शुड नॉट स्टार्व्ड। ओके, द फार्मर working hard, he started to work hard, the farmer started to working hard lest he should not starve, माइक हट जाएगा। लेस्ट के साथ शुड लगता है, ठीक है। द फार्मर started working hard, the farmer started to working hard lest he should not starve. The farmer started to working hard lest he should not starve. Hardly had I arrived at the gate when my servant bought the horse. Remove hardly, put scarcely, ठीक है। Scarcely had I arrived at the gate then my servant bought the horse, ठीक है। तो ये हो जाएगा scarcely had I arrived at the gate then my servant bought the horse। ओके, सो यहाँ पे आ जाएगा स्कार्डली आई हैड अराइव्ड व्हेन, यहाँ वैन आएगा, सॉरी, स्कार्सली आई अराइव्ड एट द गेट scarcely had I arrived at the gate when my servant bought the horse। Okay, so hardly and scarcely both followed with the when, not then. So you should in mind, like hardly and scarcely both is followed with the when, not the then. Okay, now next one is use the following words to make sentence that bring out their meaning clearly. Do not change the form of word. Misogynist, so misogynist, a man who hates women. Okay, so the meaning of misogynist is a person who hates the discriminate against the woman. How to use misogynist in the sentence? So misogynist is a hater of woman, we can say. Okay,
Next one is unprecedented. Unprecedented. So unprecedented, never having happened or existed before. So never having unprecedented is what is having no precedent. Okay, so अगर इसको यूज में समथिंग दैट इज अनप्रेसिडेंटेड इज नॉट नोन. ओके, सो इसको अगर आपको सेंटेंस में यूज में लेना हो तो आप लोगे कैसे यूज में. द अर्लीस्ट नोन यूज द एडजेक्टिव अनप्रेसिडेंटेड मिड 1600 एंड कुछ भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. The unprecedented situation faced by the India in 1920, we can say this anything. Okay, now next one is orchard. Orchard की मीनिंग बतानी है ना. An orchard is an intentional plantation of tree or shrub that is maintained for food production. ठीक है, अब बताना है मोरल. क्या बताना है मोरल. मोरल होता है हैप्पी होना, सैड होना, कॉन्फिडेंट होना. ए ग्रुप ऑफ पीपल फील एट पर्टिकुलर टाइम, दैट इज मोरल. सो द मीनिंग ऑफ मोरल इज मोरल प्रिंसिपल, टीचिंग्स एंड कंडक्ट. सो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन फेल्ड बाय ए पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल who work together, and high moral helps teamwork and information sharing. तो ये हो गया इसका सेंटेंस. और नेक्स्ट है हमारे पास वॉलंटियर. वॉलंटियर, सो वॉलंटियर ए पर्सन हु ऑफर और एग्रीज टू डू समथिंग विदाउट बीइंग फोर्स्ड और पेड टू डू इट, दैट इज वॉलंटियर. ठीक है, ए पर्सन हु जॉइन्स द आर्म फोर्सेज विदाउट बीइंग ऑर्डर टू, दैट इज द वॉलंटियर. ठीक है, अब है फिल इन द ब्लैंक को हमें पढ़ना है. तो यहाँ पे देखो फिल इन द ब्लैंक में है मॉडर्न यूथ इज़ फॉन्ड ऑफ ऑस्टेंसिबल. Modern youth is fond of ostentatious life. Ostentatious life. It is first, not ostensible. It is ostentatious life. Okay. The poetry of the Keats has a sensational beauty. Okay. So the poetry of Keats has a sensational the poetry of Keats poetry sensuous, not in the sense of being sensual about the feeling of sensuality. So that was a sensuous beauty. It is sensuous beauty. That is sensuous. Okay, sensuous मतलब gift of communicating with senses. Unique gift. That was sensuous. Okay. So now next one is King Ashoka did not approve of the barbarous sport of hunting. King Ashoka did not approve the barbarous. King Ashoka barbarous is barbarous or barbaric. So it is Ashoka was a barbaric and cruel ruler. So he was not his father. So a barbaric will be the right answer. Barbaric will be the right answer here. Also, King Ashoka did not approve of the barbaric sport of hunting. Everyone despised him for his
noxious behavior, not obnoxious, it is noxious. Everyone despise him for his noxious behavior. And what is obnoxious? Obnoxious, highly objectionable or offensive. So yeah, it is not noxious, it is obnoxious. Everyone despise him for his obnoxious behavior. So obnoxious is very disappointing, very offensive, very objectionable and odious behavior. noxious क्या होता है? noxious क्या होता है? noxious is harmful और poisonous behavior. So दोनों का ही सिमिलर मीनिंग लग रहा है हमें, तो हमें इसको देखना पड़ेगा. यहाँ क्या आएगा? एवरीवन despised him for his obnoxious behavior. So यहाँ पर आएगा everyone despised him for obnoxious behavior, not noxious behavior. ठीक है, तो यहाँ पे आएगा obnoxious, not noxious. noxious और obnoxious मीनिंग सिमिलर लगते हैं, बट obnoxious will be the correct one. So noxious is poisonous and harmful. Obnoxious is like you are behaving not according to the situation. The patrol party was attacked by militant. The patrol party was attacked by militants. So यहाँ पे the patrol party P आएगा. It will be the patrol PATROL. The patrol party was attacked by militant. अब हमें idiom यूज़ में लेने हैं कुछ, तो idiom कैसे हैं? बैक सीट ड्राइवर. बैक सीट ड्राइवर. बैक सीट ड्राइवर क्या होता है? पैसेंजर इन ए कार वो गिव्स द A passenger in a car who gives the driver unwanted advice. Okay, so that is the backseat driver. Okay, next one है call it a day. Call it a. next one है call it a day. ठीक है, call it a day मतलब to decide to stop doing something. To decide to stop doing something, that is call it a day. Okay, next one है wait behind the ears. Wait behind the ears. Wait behind the ears. Wait behind a ears. वेट बिहाइंड द ईयर्स का मतलब होता है लेकिंग एक्सपीरियंस और इमेच्योर. वेट बिहाइंड द ईयर्स इज इमेच्योर. ओके, नेक्स्ट है सेट ऑफ. सेट ऑफ. सेट ऑफ का मतलब होता है पुट इन मोशन और मूव टू एक्ट, टू एक्टिवेट. ओके, सेट ऑफ का मतलब होता है सेट ऑफ का मतलब होता है टू कज एन एक्टिविटी और इवेंट. ओके, टू कज एन एक्टिविटी और इवेंट. इट इज़ एक्शन सेटिंग अगेंस्ट इट. सेट ऑफ का मतलब होता है मीनिंग टू एम्बार्क ऑन ए जर्नी. ठीक है, टू एम्बार्क ऑन ए जर्नी. टेल स्टोरी, सेट ऑफ. ठीक है, टू मेक समथिंग मोर एक्शनेबल, टू एम्बार्क ऑन ए स्टोरी, दैट इज सेट ऑफ. ओके, नाउ रन आउट ऑफ. रन आउट ऑफ. रन आउट ऑफ का मतलब होता है टू फिनिश. रन आउट करना, फिनिश कर दिया. रन आउट डेफिनेशन क्या होता है? टू फिनिश और सेल ऑल ऑफ समथिंग. ठीक है, रन आउट का मतलब होता है टू फिनिश. ओके, सो नाउ ऑल राइट, इट्स फिनिश नाउ.
I finished your whole chapter paper of the English compulsory. Thank you.